हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल। आपके लिए खुशखबरी है। नाउ यू विल गेट करंट अफेयर्स compilation in the form of video. I have seen lot of friends who have planned to skip current affairs due to low cost benefit analysis. So I thought, why cannot I help you? Friends, if you skip one line of your syllabus, your chance of getting selected falls. If you are not ready to read current affairs, others are there who not only study current affairs but they are ready for multiple revisions. But to cover the entire current affairs from June 2020 to March 2021, it may come in 2-3 parts. Let me tell you, current affairs will be in bullet points, right? There will be a separate video for Jammu and Kashmir current affairs because overall it is JKSSB. So before uploading current affairs videos, I will upload a video on how to study Atlas map. Most of the friends feel lazy while reading Atlas. Please study and revise Atlas multiple times. Here I am guaranteeing you there will be 8 to 10 questions, I guess so, directly or indirectly from Atlas. So if you are new on my channel, please do subscribe and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get notification immediately. दोस्तों, this is the second practice set. If you have not watched first practice set on GK with special reference to Jammu and Kashmir, I will provide you link in description box, so please watch it. Let us start today's video. Today's video we have practice set 2 on computer knowledge. Before going to practice MCQs, let me quote Swami Vivekananda. Arise, awake and stop not until the goal is reached. दोस्तों, यहाँ पे ये कोट दी गई है तो मैंने आपके लिए रखी है क्योंकि ओवरऑल यू नीड मोटिवेशन, राइट? इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी बट इट वर्क्स फॉर यू मे बी. So let us start today's practice set. It is about knowledge of computer. It is our practice set second. So question number first is, consider the following statement as, right? दोस्तों, it's consider the following statement as first and statement second is given. You have to choose correct answer, right? So first statement is microcomputer is smaller than mini computer, and second statement is mainframe computer is larger than micro and mini computer. दोस्तों, you have to choose correct answer among both the statements, which one is correct, right? So choose your answer, pause the video and try to answer first. So the answer is C. That means both the statements are correct, right दोस्तों? Yes. So let me tell you one thing about this micro, mini and mainframe computer. Basically the mainframe computer is larger in size. It has large memory, high processing speed, high cost, while this mini computer is small size, slow type, right? And the microcomputer is, just to take the example of laptop. This is so. The next question is match the following, right? So here you have generation. On one side you have generation of computers, on second side you have main computers. So you have to match them. दोस्तों, you have to match them and choose correct answer among A, B, C and D. So your answer is, the correct answer is C. This is the correct answer. So you can see the correct answer is C. That means the generation first computer is Univic and generation 2 computer is IBM 1620, and 3, that is generation 3 computer is IBM 360, and generation 4 computer is Apple. This is your right answer. So come to question number third. Consider following statements about secure socket
layer, right दोस्तों. This is a question number third, so try to answer this question. Pause the video. Simply the correct answer is question number third, correct answer is B. दोस्तों, you have to choose the correct answer, statement first and statement second. That means consider the following statement about secure socket layer. Yani that means IP protocol. Is it IT protocol? It allows secure connection, right दोस्तों. It is not IT protocol, so in this way this statement is wrong, and yes, it allows secure connection, this is right दोस्तों. Answer is part B, only statement second is correct. So let me tell you one thing about this secure socket layer. Basically, it is an encryption based internet security protocol. It was first developed by Netscape 1995 for the purpose of ensuring privacy, right. Now come to the question number 4. Here is the question on modem. In modem, right, choose one of the answer, A, B, or C, or D. In modem, several digital signals are multiplexed. A digital signal changes from some characteristics of the carrier wave. Digital signal is amplified, none. You have to choose the right answer. What is the main function of modem, right? So here in this way I can say you have to choose the correct answer. The answer is B. Answer is B. A digital signal changes some character of a carrier wave, right दोस्तों. Answer is C. Basically modem is very important and hard topic, and you should have a command on this topic. Let me tell you, this modem is actually modulator as well as demodulator, right. So that is why it is called modem. Mo means modulator and dem means demodulator, and it is actually a hardware device, right. So now the next question is firewall is a important question. Hardware, software, both, a network. दोस्तों, it is a simple question. You should answer this question. C. That means it is both hardware as well as software. So software actually firewall, we install firewall to enhance internet securities, right. आपने भी देखा होगा during the 35 article. So at that time firewall लगाए गए थे, because आपको पता ही होगा उसमें क्या था. So friends, before going to discuss question number 6, let me tell you, I have seen MCQs on social media, but I found practicing them is just wasting of your time, because these questions are easy and at least everyone can answer them. My motive is to widen your knowledge base and inform you about your loopholes in your preparation, right. So let me tell you one thing. In the first practice set, most of the students scored 15 to 20 marks out of 30 questions. That means still there are loopholes in your preparation, so try to plug them properly, राइट दोस्तों. अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ विजिट to the main website, to the main content of the video. So or I will provide you link in the description box. That is awesome video, right. Now come to the question number 6. Consider following statement about HTTP and FTP. FTP दोस्तों, एक तो ये भी था कि मैं आपको HTTP पे ही क्वेश्चन रखूँगा कि व्हाट HTTP स्टैंडर्ड्स फॉर. ये हर किसी को पता है, एंड इट इज़ इमटेरियल टू प्रैक्टिस साइज क्वेश्चन, राइट. So I have given three statements. You have a three statement here on HTTP and FTP, right. Here that means you have at least 5 questions in single question, right. That means HTTP, FTP, and these three statements overall
Question number 6 consists of 4 questions, right? So choose the incorrect statement. You have to choose among these 3 statements. First is both are file transfer protocol, right? You have to choose incorrect statement. Both are file transfer protocol. FTP uses to upload file while HTTP provides web page. Both requires authentication. So choose incorrect. दोस्तों वर्डिंग पे ख्याल करना कि इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट क्या है इसमें? इसका आंसर है यानी सी, ओनली 3, यानी 3 इसमें इनकरेक्ट है, ओनली 3 इज इनकरेक्ट। ये वाला इनकरेक्ट है, 3 is incorrect, this one is correct, this one is correct, right? So let me tell you one thing here. दोस्तों जो HTTP है ये एक तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था, सो सिंपल। FTP पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि जो दोनों के दोनों हैं ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हैं, दोनों के दोनों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हैं। एंड जो FTP जो यूज़ होता है टू अपलोड फाइल्स, हाँ FTP जो होता है ये तो यूज़ होता है फाइल्स को अपलोड करने के लिए, वाइल जो HTTP होता है ये तो वेब पेज प्रोवाइड्स, वेब पेज, ठीक है दोस्तों, वेब पेज। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है जो बोथ रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, बल्कि ये रॉन्ग है। ओनली HTTP requires authentication while FTP requires no authentication. In this way the statement third is incorrect, both, क्योंकि इसमें both लिखा है तो इसमें आंसर आपका ओनली 3, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? व्हाट इज़ हाइपर टेक्स्ट? सिंपल डेफिनेशन मांगी है क्वेश्चन ने कि व्हाट इज़ हाइपर टेक्स्ट, एंड इट इज़ सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है ओनली ए नेविगेशनल एलिमेंट, ये सिर्फ नेविगेशनल एलिमेंट है। सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, नेविगेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। और स्टेटमेंट थर्ड है, और ऑप्शन थर्ड है सॉरी, इट इज़ द टेक्स्ट दैट वी हाईलाइट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। दोस्तों क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 7 का बी, ठीक है। नेविगेशन एलिमेंट भी है मगर ओनली नेविगेशन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इन दिस वे दिस इज इनकरेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। तो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और किसने इसको इजाद किया? टिम बर्नर ली इन 1987। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा क्रोम होता है, क्रोम यूजेस HTTP3, राइट, HTTP3, यानी 1 2 हो गया, नाउ क्रोम यूजेस HTTP3, याद रखना HTTP3। सो हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना होगा। तो इन कार्बन कॉपी द मेन recipient is not informed about other people who receive the same message। और स्टेटमेंट सेकंड है इन ब्लाइंड कार्बन कॉपी द रेसिपिएंट नोज द नेम ऑफ अदर रेसिपिएंट्स। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का, यानी इसमें नन करेक्ट, यानी दोनों में से दोनों करेक्ट नहीं हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। तो मैंने डेलिबरेटली इसको उल्टा पलट किया क्वेश्चन को, यानी जो कार्बन कापी होती हैं उसमें जो रेसिपिएंट होते हैं उसको पता होती हैं, ठीक है, तो ब्लाइंड कार्बन कापी में नहीं पता होती हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया डी। दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया, सो प्लीज़ शेयर इट। आप कमेंट और शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो, सो प्लीज़ शेयर इट, हर किसी को फ़ायदा मिलना चाहिए अगर मैंने मेहनत की, ठीक है दोस्तों। तो वादा करिए कि आप इसको शेयर करोगे। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, पुट देम इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको पुट करना होगा। अगर आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी का डेट याद होगा, तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो आंसर क्या होगा इसका? जी दोस्तों, इसका आंसर क्या है? यानी सी। पहले फर्स्ट विंडो NT, फिर उसके बाद विंडो ME, फिर उसके बाद 3
विंडो एक्सपी, फिर उसके बाद विंडो, फिर ठीक है, हाँ सी पार्ट है इसका, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, तो सी पार्ट है इसका। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। तो आपको का एक साइड से इन्वेंशंस दी गई हैं, दूसरी साइड से डेट्स दी गई है, आपको इनको मैच करना है। तो क्या है इसका आंसर? ठीक है दोस्तों, क्या है इसका आंसर 10th का? यानी इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी, यानी इंटरनेट का है बी, इंटरनेट बी 1950, ठीक है। और जो MS ऑफिस का है डी 1988, और 3 मोसेक का है सी, और फर्स्ट URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का है 90। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो द टाइम टेकन टू रीच द पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड सीक टाइम। द टाइम टेकन टू रीड data on track is called latency time. The latency time plus seek time is equal to access time, right? तो आपको which are the following statement are या oblique statement is are correct है, is are incorrect, सॉरी इनकरेक्ट आपको बोलना है, कौन कौन सा स्टेटमेंट है इसमें। तो क्या है आपका आंसर? इसका आंसर है दोस्तों सी। सी यानी फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। यानी द टाइम टेकन टू रीच द पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड नॉट सीक टाइम बट लेटेंसी टाइम, राइट? तो इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। और द टाइम टेकन टू रीड डेट ऑन ट्रैक इज कॉल्ड सीक टाइम, यानी इसका आंसर सीक टाइम है, इसका आंसर लेटेंसी टाइम है। इन दिस वे बोथ आर इनकरेक्ट एंड करेक्ट आंसर इज, हमें यहाँ पे बोला गया है कि इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैशी मेमोरी। कैशी मेमोरी के कुछ 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्टोर्ड इन कैशी मेमोरी। स्टेटमेंट सेकंड है, कैशी मेमोरी इज इम्प्लीमेंट यूजिंग DRAM। वेन एवर डेट इज नॉट फाउंड इट इज कॉल्ड हिट। When the date at a location in cache is different from the date located in the main memory, the cache is called inconsistency. Inconsistency, choose the correct answer. दोस्तों आपका आंसर क्या है इसमें? तो इसका आंसर है 12 का ए। यानी इसका आंसर है चूज द करेक्ट, 1 इज करेक्ट एंड 4 इज करेक्ट। इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने कैशी मेमोरी पढ़ी होगी, इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्टोर्ड इन कैशी मेमोरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्टेटमेंट 4 है, व्हेन द डेट एट द लोकेशन इन कैशी इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट डाटा लोकेशन है, सॉरी डाटा लोकेटेड इन द मेन मेमोरी, द कैशी इज कॉल्ड इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। जब डाटा डिफरेंट होगा तो इट इज़ कॉल्ड इनकन्सिस्टेंसी। तो ये भी करेक्ट है 4, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। यानी सेकंड का क्या है कि कैशी मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड बाय DRAM यूजिंग DRAM, नहीं DRAM से नहीं, ये SRAM, इसका SRAM से होता है, इम्प्लीमेंटेड थ्रू SRAM। वेन एवर डेट इज नॉट फाउंड इट इज कॉल्ड हिट। वेन एवर डेटा इज नॉट फाउंड इट इज कॉल्ड हिट। जब डेटा इसमें फाउंड नहीं होगा इट इज कॉल्ड हिट। नहीं, नॉट फाउंड का हो गया मिस। वेन एवर डाटा इज नॉट फाउंड इट इज कॉल्ड मिस। वेन द डेटा इज फाउंड इट इज कॉल्ड हिट, राइट। आगे बढ़िए आप। 13 क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड। यानी द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? 13 को इसको बोलते हैं
एस्केलेशन, इसका आंसर है एस्केलेशन। तो 14 क्वेश्चन है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोडर। लोडर भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चूज द इनकरेक्ट। यहाँ पे वर्ड्स पे ख्याल करना कि इनकरेक्ट पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज़ द काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। स्टेटमेंट सेकंड, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यू हैव टू चूज इनकरेक्ट, राइट, नॉट करेक्ट। तो 14 का आंसर है इनकरेक्ट, यानी दोनों के दोनों इसमें क्या है, करेक्ट। नन इज इनकरेक्ट, नन इज इनकरेक्ट, यानी डी इसका आंसर है, नन इज इनकरेक्ट। हाँ, लोडर इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस लोडर इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए। तो 15 क्वेश्चन हमारे पास है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको डरना मत, लंबा क्वेश्चन है, तो बी पेशेंस, पेशेंस रखिए आप। तो असेंबलर कन्वर्टर्स, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो करेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, राइट। तो असेंबलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज ऑन टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, असेंबलर कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को दैट इज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, वाइल इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग इट एज ए होल। आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स जस्ट वन स्टेटमेंट ऑफ the program at a time into machine code. Compiler scans the entire program and translates the whole of it into machine code at once. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना होगा 15 को। तो दोस्तों इसका करेक्ट स्टेटमेंट है 2 और 3, यानी सी, पार्ट सी इसका आंसर है। करेक्ट यही है, क्योंकि असेंबलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, वाइल इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग इट एज ए होल। नो, एज ए होल ये नहीं करता है। ठीक है, एज ए होल तो नहीं करता है। हाँ, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम। कंपाइलर एंटायर, एज अ होल जो यहाँ पे लिखा है ये तो कंपाइलर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एन इंटरप्रेटर टेक्स वेरी लेस टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। हाँ, ए कंपाइलर टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, ये भी ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। तो यहाँ पे भी आपको ये प्रोग्राम डॉस, जीमेल, IBM, इसको मैच करना है इसके साथ। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर 16 का, इसका बी है, पढ़ा होगा आपने, यानी सी प्रोग्रामिंग, यानी बी है इसका। डेनिस, डॉस का क्या है, तो 16 का बी है। MS डॉस का डी है। टिम, तो इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज दे आर इन मोनीटर। जैसे आपको ये मोनीटर पे दिखे जाते हैं तो उनको टॉप टू बॉटम आपको अरेंज करना होगा। टूल बार, टास्क बार एंड टाइटल बार क्या है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 का डी, यानी पहले आपको क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे मोनीटर बनाऊँ, ये है मोनीटर, यहाँ पे ये कंप्यूटर का मोनीटर। तो पहले नंबर क्या, यहाँ पे ऊपर आपको टाइटल बार, और उसके बाद आपको टास्क बार, लास्ट पे आपको सॉरी यहाँ पे टास्क बार, तो यहाँ पे टूल बार होता है, सेंट्रल में टूल बार होता है, राइट। 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कंसिडर, आपको क्या करना है कि करेक्टली मैचड, यानी ये 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि करेक्टली मैचड, विच ऑफ देम इज करेक्टली मैचड। फर्स्ट जनरेशन में उसने लिखा वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक कोर। तो सेकंड जनरेशन में लिखा ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक ड्रम्स।
थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स एंड मैग्नेटिक कोर, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज सो सिंपल एंड आई थिंक पहले ही पेज पे दिया गया है। हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट जनरेशन की बात करें कि इसमें स्विचिंग डिवाइस जो था वो वैक्यूम ट्यूब था, हाँ ठीक है। और इसका जो स्टोरेज डिवाइस था दैट वाज मैग्नेटिक, पहले इसका आंसर बताइए आप। 18 का क्या है इसका दोस्तों? सी है, सी है इसका आंसर। यानी ये वाला गलत है इसमें, क्योंकि हाँ वैक्यूम ट्यूब था इसमें मगर मैग्नेटिक कोर नहीं था। स्टोरेज डिवाइस इसका क्या था? मैग्नेटिक ड्रम। So this is incorrect. Now come to statement second, that is second generation transistors. Yeah, obviously they were using transistors and magnetic drum. Yes, magnetic drum, transistors and no, magnetic drum, magnetic, they were using magnetic drum, no magnetic core। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट जनरेशन यूज़ करती थी मैग्नेटिक ड्रम और सेकंड जनरेशन यूज़ करती थी मैग्नेटिक कोर। दैट मीन्स इसमें थोड़ा इंटरचेंज करना होगा, देन बोथ स्टेटमेंट्स विल गेट करेक्ट है। तो थर्ड जनरेशन करेक्ट है, हाँ इंटीग्रेटेड चिप, मैग्नेटिक कोर, वैस। तो फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, राइट, हाँ स्विचिंग डिवाइस उनका माइक्रो प्रोसेसर था एंड स्टोरेज डिवाइस सेमीकंडक्टर्स। ओनली स्टेटमेंट 3 and 4 आर करेक्ट, दैट मीन्स योर आंसर इज सी। दोस्तों अगर सोर्स की बात करें तो मैंने कौन कौन सा सोर्स यूज़ किया टू फ्रेम दिस प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट इज़ ल्यूसेंट, सेकंड इज़ एरिहांत एंड थर्ड इज़ ओ लेवल बुक ऑन कंप्यूटर बेसिक्स प्लस इंटरनेट, राइट, एंड थर्ड इज़ इंटरनेट एंड फोर्थ इज़ इंटरनेट, सॉरी। ये 4 सोर्सेज मैंने कंसिडर किए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, स्पीच सिंथेसाइजर एंड प्रोजेक्टर इज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं 1, 2 and 3 एंड यू हैव टू चूज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें बताना है इनमें से कौन सा है। स्पीच सिंथेसाइजर्स एंड प्रोजेक्टर इज आउटपुट डिवाइस। ASCII represents 7 bit और IP एड्रेस इज 32 bit alphabet numeric एड्रेस, राइट। सो चूज द इनकरेक्ट, यानी इन तीनों स्टेटमेंटों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? सी, यानी इसमें एक ही इनकरेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3। क्यों? हाँ स्पीच सिंथेसाइजर्स आपने पढ़े होंगे, आपने अगर आपके फ़ोन में डिक्शनरी होगी तो जब उसमें हम कुछ सर्च करते हैं ओब्वियसली अगर हमें प्रोनाउंसिएशन जाननी होगी तो वहाँ पे एक बिल्कुल प्रोनाउंस कर रही है, ठीक है, वहाँ से हमें प्रोनाउंसिएशन मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, तो अगर कोई ब्लाइंड होगा सो ही विल बी एबल, राइट। तो दूसरा है प्रोजेक्टर, हाँ प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस, राइट, दिस वन इज करेक्ट। एंड सेकंड इज ASCII, क्या है इसका फुल फॉर्म? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पहले ये जो ASCII था दैट वाज ओनली इंग्लिश अल्फ़ाबेट इनिशियली, ठीक है, कोड था ये पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट और 7 बिट का था। तो नाउ इट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, दैट इज़ इट यूजेस बोथ alphabets as well as numeric and it is now 8 bits। पहले ये 7 bits का था, now it is 8 bits and allows 2 power 8 unique symbols or characters। ठीक है, 8 बिट का है, दैट मीन्स 2 power 8 दैट इज इक्वल टू 256, राइट। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट IP एड्रेस जो हमारा होता है IP एड्रेस, हाँ ये तो 32 बिट्स का होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस 30 बिट्स का होता है, बट अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं इसके, इट इज़ ओनली ऑफ न्यूमेरिक। आपने IP एड्रेस देखा होगा, दैट इज़ लाइक लुक्स लाइक दिस
121.0.3.321.21, राइट। IP एड्रेस लुक्स लाइक दिस। इसमें कोई मतलब हमें अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आएगा, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। तो इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि IP एड्रेस ये तो 30 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है, हर किसी यानी यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस, राइट। तो अगर हम IP एड्रेस का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो पहले IP अगर आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव रेड इट डीपली यू माइट हैव एनकाउंटर्ड IPv4 एंड IPv6। दैट मीन्स ये तो पहले था, यानी IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो पहले IP वर्जन 4 था, तो इट कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। वर्जन 4 कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स एंड नाउ वर्जन IPv6 कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स, राइट। तो ये क्या होता है कि जो IP एड्रेस का 4 होगा आपके पास, जो 4 वाला वर्जन होगा आपके पास IPv4 वर्जन 4, तो द IP एड्रेस इन वर्जन 4 लुक्स लाइक दिस 2.32.163.213, right. So these are 4, and in IPv6 it will be like just add 216 and 314, it becomes IPv6, right. Now come to question number 20, that is the effect of computer virus can be। क्या वायरस के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? इंक्रीज मेमोरी साइज, डिक्रीजेज मेमोरी साइज, आल्टर्स PC सेटिंग। क्या है आपका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑल। या इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि अगर वायरस रेप्लिकेट हो गया तो उसकी कुछ मेमोरी, उसमें आपकी मेमोरी वेस्ट होगी, दैट मीन्स योर मेमोरी साइज इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस, राइट। तो अगर उसने कुछ डिलीट किया दैट मीन्स योर मेमोरी साइज इंक्रीजेस। तो प्लस आल्टर्स PC, यस इट इज़ D। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव doubt or query regarding this video, you can contact me on my mail given in description box. Thank you for watching.